ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਧਰਾ, ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮਾਇਆ ਕਰਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਇਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਜਾਲ ਅਰ ਮਹਾ ਜੰਜਾਲਾ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਮਹਿ ਡਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਮਹਾ ਜੰਜਾਲ। ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਜੇਬਾ ਅਰ ਨੈਣੀ, ਕੰਨੀ ਕਾਲ ਸੁਣੈ ਬਿਖ ਬੈਣੀ। ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਨ, ਰਸਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਜਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਜੰਜਾਲ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਚਿਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਸਰਨ ਕਰਨਾ ਪਤ, ਗਹਿਓ ਚਰਨ ਆਸਰਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਨ ਸਾਡਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੁਣਾ ਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ये जिहड़ा जंजाल तो छुट गए, काल तो महाजाल तो छुट गए, जमन दा डर खत्म हो गया। चरण आसरा के जिहड़े बचन ने, चरण की ज्ञान, गुर दा ज्ञान बचन, जदों गुर दा आसरा लैंदे हाँ, गुर दी ओट आसरा लैंदे हाँ, प्रभु दी शरण वे जांदे हाँ, प्रभु किरपा कर दिंदा है। नाभ रूप पयो साध संग भव निध पार परा। ये जिहड़ा संसार सागर सी, भव सागर सी, अगन सागर, जिसनूं बहुत सारे नाम दिते गुरबाणी दे विच, बिक सागर कहंदे, इहनूं पार करन वास्ते बेड़ी रूप दे विच साधु जन मिले। नाभ रूप पयो साध संग, क्योंकि भव सागर बहुत वड्डा है, इसनूं पार करन वास्ते बेड़े की जरूरत है। बेड़ा कौन बन जाता है? साधु जन। उन्हां दा संग कीता, नाभ रूप पयो साध संग, भव निध पार परा। कहंदे इदां भव सागर सी जिहड़ा, इसनूं पार कीता। आप्यो पियो गत थियो, अगे की सी अमृत, कहंदे अमृत नूं पीता, गत होई। भरमा कहो नानक अजर जरा, जिहड़ा मन भरम दे विच सी, इहदा टुट गया। जिहड़ा इसने ज्ञान लिया, जिहड़ा अजर है, क्योंकि हर एक जीव नूं इह ज्ञान जरिया नहीं जाता। सौखा है, आसान है, लेकिन आसान करके, क्योंकि रब नूं मिलना बड़ा आसान है। एक छिन दे विच मिलाप है, लेकिन हुण आपां नूं इन्ना औखा करके समझाया गया है कि कोई जीव सानू सौखा करके दसदा, उहदे मनण दे विच नहीं आउंदा, उसदे वास्ते वो अजर बन जाता है, जरिया नहीं जाता उस तो भी है। ऐ भी हो जाएगा, पर जिन्हां ते किरपा करदा है वो फिर अजर नूं जर लैंदे ने। जिन्हां नूं अजर नूं जर लिया, उन्हां नूं प्रकाश प्रगट हो जाता है। अजर जरै तां नीजर चरै, जगन्नाथ स्यों गोष्ट करै। इस करके कहंदे, पर सानू किरपा कीती, कहंदे मैनू किरपा कीती, मैनू वो अजर नूं जर लिया, ते फिर मेरा परम सब खत्म हो गया, अमृत प्राप्त होया, मेरी परमेश्वर दे घर दे विच गत होई। ये तरीका अपनाया, क्योंकि अपना अपना जिहड़ा हर एक गुरसिख ने इस अवस्था नूं फिर अपने तरीके दे नाल बयान कर दिता। उन्हां दे बचनां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कर दिता। ये हर एक सिख दी अपनी अपनी जो अवस्था वर्णन कीती पहली ते ज्ञान लैण तो बाद दी। अगला शब्द जिहड़ा है जैत श्री महला पंजवां, फिर जैत श्री राग दे विच महले पंजवें दा शब्द है। जाको भए गोविंद सहाई, सूख सहज आनंद सगल स्यों, वाह को ब्याद ना काई। कहंदे जिसनों आप परमेश्वर सहाई हो जाता है, जिसदा आप सखा हो जाता है, जिसदा आप संगी हो जाता है, उन्होंने फिर सदा आनंद है, सुख प्राप्त होता है। क्योंकि जिथे प्रभु सहाई होंदा, वो किथे सहाई होंदा? वो सानू उत्थे वसा लैंदा जिथे आप वसदा है। आप किथे वसदा है? सहज दे विच। चौथे पद विच, चौथे पद नूं सहज कहा, चौथे पद में सहज है। वो सहज दे विच सानू लै जांदा। उत्थे सहज दे विच सुख ने, त्रै गुणा दे विच दुख हन, सहज दे विच चौथे पद विच सुख है। उत्थे सुख प्राप्त हो गया। कहंदे सुख सहज आनंद सगल आनंद ही है। जो भी उत्थे वस जांदा उसके मन नूं आनंद आ जाता है। वाह को ब्याद ना काई। हुण उसनूं कोई भी उत्थे ब्यादी नहीं लगती, उसनूं कोई दुख नहीं लगता, कोई भरम नहीं लगता, उसनूं किसी नाल नफरत नहीं, किसी नाल वैर विरोध नहीं। क्योंकि वैर विरोध कित्थे है? त्रै गुणा दे विच है। चौथे पद विच तां कोई बेगाना ही नहीं है। उत्थे तां जो बसदा अपना है, उत्थे तां सारे अपने हन। ना को वैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको
बन आई। क्योंकि चौथे पद दे विच जदों वो अपना देश है, वो सारे उत्थे अपने ही दिसते हैं। इस करके समझाते ने कि फिर उत्थे कोई ब्याद नहीं है, उत्थे कोई द्वैत नहीं, उत्थे कोई ईर्खा नहीं, नफरत नहीं है, कोई उत्थे किसी दे नाल कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई भी ब्याद नहीं है। रहो पंक्तियां ने शब्द दियां, दिसै सब संग रहे अलेपा, नह व्यापे उन माई। ते संसार दे विच ऐसे जीव जिहड़े ने जिन्हां नूं प्रभु सहाय हो जाता है, जिन्हां नूं सुख सहज प्राप्त हो जाता है, संसार च किवें विचरदे ने? कहंदे उस संसार सब लोकां दे विच उवें ही रहिंदे ने जिवें आम लोक रहिंदे ने, सारिਆਂ च विचरदे ने, लेकिन उत्थे रह के भी निर्लेप रहिंदे ने। लेप नहीं लगदा उन्हां नूं, माया नहीं व्यापदी, नह व्यापे उन माई। क्योंकि त्रै गुणा तो निर्लेप हो जाए। त्रै गुण माया है, चौथे पद दे विच फिर माया नहीं रह जाती, सारा हरि दा रूप प्रगट हो जाता है। इस करके माया उन्हां नूं व्यापदी नहीं है। विच रह के गुरमुख माया विच उदासी, विच ही रह के निर्लेप रहना है। एक रंग तत के बेते, सतगुर ते बुद्ध पाई। कहंदे ऐसे जीव जेड़े ये बुद्ध कित्थों मिलदी है, ज्ञान किन्हां तो प्राप्त होया? जेड़े एक रंग दे विच परमेश्वर दे रंग दे विच रते ने, जेड़े तत बेते ने, उन्हां तो ये सच्चे गुर दी ज्ञान प्राप्त होया, ये बुद्धि प्राप्त हुई सतगुर ते। क्योंकि अपनी मत नहीं है, ये जेड़े प्रभु समा जाते ने, फिर आप परमेश्वर उन्हां द्वारा अपना ज्ञान देंदा है। सतगुर साडे सारिਆਂ च वसदा है, एक ना दा सतगुर नाल मिलाप हो जाता, एक ना दे सतगुर प्रगट हो जाता है, एक ना नूं सतगुर गुप्त है। ऐसा कोई भी जीव नहीं संसार दे विच जिस दे अंदर सतगुर दा वासा नहीं है। सतगुर नूं अपनी अपनी भाषावां दे विच किसी ने उसनूं आत्म राम कह दिता है, कोई किसी धर्म के लोग किसी होर नाम दे नाल उसनूं पुकारदे हन, लेकिन बसदा सारिਆਂ च है। दया मया कृपा ठाकुर की, सही संत सुभाई सुपाई। कहंदे ओही संत ने जेड़े ओही शोभा पाउंदे ने, उन्हां नूं ही ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਠਾकुर की, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ, जिन रस रस हर गुण गाई। कहते ऐसे जना का संग करके जिन्हां ते प्रभु की दया है, कृपा है, ऐसे जना का संग करके ही सतगुर समझाउंदे कि साडा निस्तारा हुंदा है। क्योंकि वह प्रभु दे गुण गाउंदे ने रस के, उस दे विच रत के, जिथे प्रभु नूं पाउंदे ने। से तुद नो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। उहदे रस दे विच रस के उन्हां नूं भुख है नाम दी, प्रभु दी सिफ सलाह दी। दो तरह दे जीव ने, एक गाउंदे ने माया दे वास्ते, वो माया च रत के गाउंदे ने, एक प्रभु दे रस दे विच रत के गाउंदे हन। जिहड़े उहदे रस दे विच रत के गाउंदे ने, उन्हां दा संग करके निस्तारा होंदा है। आओ अगला शब्द फिर जैत श्री राग दे विच महले पंजवें दा शब्द है, गोबिंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे में दीप। समझाउंदे ने सतगुरु जी कि जिहड़ा गोबिंद है वो सानू
ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਗਨ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਮੈਂ ਦੀਪ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਬੇਗਾਸ। ਏਦਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ? ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਪਤਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ। ਜਦੋਂ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨੇ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ, ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਧਨ, ਮਨੇ ਚਰਾਵੂ ਧੂਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੇ ਚਰਾਵੂ ਧੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰੇ, ਦਿਲ ਕਰ ਗਈ ਤੁਮਾਰੀ ਲੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਅੰਧਕੂਪ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੂ ਸਦਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੂ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਢ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਗਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਗਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅੰਧਕੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਵਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਆਪ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਆਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਖੋਰ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਕੌਣ ਜੋੜੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੋੜੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇਗਾ? ਮੁੱਖੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਆਖੇਗਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਖੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ
पालदा है, उत्थे जोड़ेगा जिथे वसदा है। क्योंकि एक वो जीव हुंदे ने जिहड़े अपने नाल जोड़ लैंदे ने। सानू लगदा हुंदा है कि ये सानू रब नाल जोड़दे ने जां सानू गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़दे ने, गुरबाणी नाल जोड़दे ने, लेकिन जोड़दे अपने नाल ने। क्योंकि जे गुरबाणी दे नाल सानू जोड़ देण, अज गुरबाणी साडे मोबाइल दे विच भी है, उत्थों भी असीं गुरबाणी पढ़ के उसनू समझ के रब नाल जुड़ सकते हाँ। फिर हर एक पिंड दे विच गुरुद्वारा बनिया है, उत्थे भी वही गुरबाणी है, लेकिन वो अपनी जगह बना लेंदे कि साडे कोल आओ, इत्थे आओ। सानू भरम पा देंदे, गुरबाणी नाल जोड़दे पर अपने नाल जोड़दे हन। परमेश्वर नाल जोड़न वाले बहुत विरले हन। पर कहते मेरा समझाउंदे ने कि जे कोई परमेश्वर नाल जोड़दा होवे, वो वचन सानू देंदा होवे, उस वचन उन्हां नू कहंदे पकड़ लो, हिरदे च बसा लो। अपने जिहड़ा जीवन उन्हां दे वचनां नू अर्पण कर दिओ। वचनां नू किसी बंदे नू कुछ नहीं देना हुंदा, आपां ने सिर्फ उहदे वचनां नू मन दे विच बसाउणा है। क्योंकि जिहड़े जन ने वो परोपकारी हुंदे ने, वो थोतों कुछ लैणा नहीं हुंदे चाहुंदे। उन्हां दे वो कोई ये नहीं जानदे भी सानू की मिलेगा इथों, असीं आ लैके आवांगे, नहीं। वो जानते ने कि असीं कुछ दे के आईए उन्हां नू। ज्ञान जिहड़ा अमुल खजाना है, अमुल ज्ञान है, वो दे के आईए। इस करके वो देण वास्ते आउंदे, कुछ लैण वास्ते नहीं आउंदे। वो फिर कहंदे उन्हां नू अपना आपा छड्ड के उन्हां दे बचनां नू मन विच वसा लईए। ते कित्थे जोड़दे ने? उस प्राणपत दाते दे नाल जिहड़ा सानू प्राण दे के जिंदा रखदा। क्योंकि सब तो पहला आपां प्राणां नू आधार बना के चलना हुंदा है। फिर प्राण वख हो जांदे ने, प्राण देण वाला परमेश्वर प्रगट हो जांदा है। फिर मन उस दे नाल जुड़ जांदा है। शुरुआत सातों कित्थों हुंदी साडी? प्रभु नू मिलण दे वास्ते प्राणां तो। इथों पौण तो पवन आरंभ, सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। ये रहो पंक्तियां सी। कहते तन मन निर्मल, मन तन निर्मल कर थक्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। इदां फिर मन तन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर नाम रूपी जिवें आपां फसल बीज के उसनू पानी लाउंदे हाँ, ऐदा मन साडा एक क्यारा रूपी हो जाता है। ते उस दे विच फिर प्रभु अमृत नाल उस क्यारे नू, उस बाड़ी नू, नाम नू साडे मन नू सिंजदा है। जिवें मन दे विच नाम दा बीज बीज लिया, फिर आपां पानी लाउंदे हाँ। मन हाली करसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। इदां फिर ज्ञान प्राप्त होंदा है। वो सानू दसदे ने किवें आपां उस प्रभु दे होना है, किवें आपां अपने मन नू हरा भरा करना है। फिर वो सोझी देंदा है। या रस मैं मगन होत किरपा ते, महा विख्या ते तोर। ऐदा फिर जदों प्रभु किरपा करदा है, फिर परमेश्वर दी किरपा सदका फिर साडा मन इस नाम रस दे विच मगन हो जाता है। ते जिहड़ा विख्या दा रस है, त्रै गुण विख्या है माया, इहदे नालों मन नू तोड़ देंदा है ते नाम रस दे नाल जुड़ जांदा, हर रस दे नाल जुड़ जांदा है। क्योंकि जब तक हर रस नहीं प्राप्त होंदा, साडा मन दी तृष्णा नहीं बुझदी, रसना दी प्यास नहीं बुझदी। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किता, जिच्चर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले, पिए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए।
ये हर रस कर्मी पाइया सतगुर मिलै जिस आए। पर यह रस कदों मिलता है? जिन्हों सतगुर मिलता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सतगुर प्रगट हो जाता है, फिर यह हर रस मिलता है। कह नानक होर अन रसा विसरे जां हर वसै मन आए। इस तरीके नाल कहंदे समझाउंदे ने, कहंदे फिर मन इस रस दे विच मगन हो जाता प्रभु की कृपा सदका ते बिख जिहड़े त्रै गुणी माया है इस तो मन निर्लेप हो जाता है। मन इहदे नालों तोड़ के नाम नाल जुड़ जाता है। आयो सन दीन दुख भंजन चित बूतो मरी और। कहंदे उस प्रभु की शरण दे विच जिहड़ा साडे दुखां दा नाश करन वाला है, जदों उस दी ओर उसनूं चितवदा है मन, अभय पददान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोड़। कहंदे फिर जदों दी शरण विच जांदा है, ये समझ के कि वही एक है जो साडे गरीबां ते दया करदा है, जो साडे दुखां दा नाश करन दे समर्थ है। फिर की करदा है प्रभु? अभय पद दान। किहड़ा दान देंदा है? अभय पद, मुक्त दान, चौथे पद का दान। अपना सिमरन बख्शिश कर देंदा है कि आ सिमरन दे नाल तुहानूं मुक्ति प्राप्त होएगी। प्रभ नानक बंधन छोड़। ते प्रभु साडे बंधनां नूं कट देंदा है, मुक्त कर देंदा है, जदों उस प्रभु की शरण दे विच जांदे हां। क्योंकि जो मुक्त होया है, जिस दे बंधन कट्टे ने, वही सानू फिर वो सारा ज्ञान देंदा किवें मन नूं आपां इन्हां बंधनां तो छुड़ाउणा है, किवें आपां चौथे पद विच उन्मन दे विच तुरी अवस्था जिहनूं कहा है, उस दे विच आपां ध्यान द्वारा विचरना है। सो हुण आपां नाल नाल ये अभ्यास करिए ताकि अपना मन भी अभय पद नूं प्राप्त कर लवे। अभय पद दे विच जाण दे वास्ते सानू जिहड़े अभ्यागत जीव ने उन्हां दा संग करना पैंदा है, क्योंकि अभ्यागत गुरबाणी च दस्सिया है जिन्हां दे मन दे विचों भरम खत्म हो जाता है, जिहड़े उस प्रभु दे भिखारी हुंदे ने, भीखक हुंदे ने, नाम भोजन दे भीखक हुंदे ने, उन्हां नूं इह अभय पद दा दान मिलदा है। ये परम पद है, इत्थे माया तो रहत प्रकाश है। जिन्हां दे मन दे विच खुद भरम है, उन्हां नूं गुरबाणी अभ्यागत नहीं कहंदी। मेरा समझाउंदे ने, अभ्यागत ए ना आखियन जिन कै मन में भरम। कहंदे जिन्हां दे मन दे खुद दे मन विच ही भरम है, वो अभ्यागत नहीं, ओहदे बारे आख नहीं सकदे अभ्यागत अभय पद दे बारे। तिस दे दित्ते नानका तेहो जिहा धर्म। जिहड़ा खुद भरम दे विच है, ओहदा अगे दिता होया धर्म भी वह जे होएगा, क्योंकि होरां नूं भी भरम दे विच पाएगा। अवय निरंजन परम पद। कहंदे अवय जिहड़ा है निरंजन परम पद है, चौथा पद है, उन्मन है। ताका भीखक होए। कहंदे जे कोई उत्थे दा भीखक होएगा, उत्थे दा भिखारी होएगा, तिसका भोजन नानका बिरला पावे कोई। कहंदे उत्थे दा भोजन बिरले प्राप्त करदे ने, क्योंकि उत्थे दे भीखक ही बहुत बिरले हन। भीख कित्थे तक ने? माया तक ने, संसार तक ने, वस्तां तक ने। आपां देखदे हां किवें भीड़ां लगियां ने संसारी वस्तां दे वास्ते, लेकिन परमेश्वर दा भिखारी कोई बिरला है। हाँ, जिहड़ा भिख मंगण जाएगा भिख्या उसे नूं पाएगा, जे मंगण ही नहीं जाएगा, दर ते जाएगा ही नहीं, किवें भिख्या मिलेगी। इस करके सानूं समझाया है भी वो अभय पद जिहड़ा है उत्थे नूं उसनूं आपां भी लोचना है, उस दे भीखक बनना है, फिर उत्थे दा भोजन मिलेगा सानूं। उत्थे की भोजन है? उत्थे वस्तु रखी है, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो
पयो जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पूछे तिसका होए उधारो। उसनू खाना की ज्ञान लेना है, पूछना की है उसनू मन दे विच पाचन कर लेना, बसा लेना, कट नहीं देना। एक चीज़ आप लेंदे, फर्ज करो आप कोई दवाई लई, बीमार हाँ दवाई लई तो उल्टी आई बाहर आ गया, वो दवाई सानू असर नहीं करेगी। जिन्हां दे अंदर वो दवाई टिक गई उन्होंने असर कर देंदी है। इदां ही गुर दा ज्ञान लैके जिन्हां ने उसनू मन विच वसा लिया, पचा लिया, उन्होंने फिर प्रभु दा मिलाप हो जाता है। जिन्हां ने खा तो लिया पर उन्होंने पचा नहीं सके, कर देता, उन्होंने फिर उन्हें असर नहीं करता। इस करके खाना भी नाल उन्होंने पचाउणा भी है, उदा उदार होता है। ये वास्ता जी ना जाए नित नित रखो और तारो, तम संसार चर लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। फिर इदां असीं तर जावांगे, फिर सानू सारा ब्रह्म दा ही पसारा नजर आना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मो पसारा, ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। सारा ब्रह्म ही है, कोई इत्थे दूजा नहीं है। ब्रह्म तो पैदा होया है, ब्रह्म दा पसारा है, अपने आप अपना पसारा आप ही कीता है। ते फिर उसका सानू ज्ञान होता है। सो की करना है बड़ा सौखा है, पर जरना औखा है थोड़ा। जिन्हें जर लिया उन्होंने प्रकाश प्रगट हो जाता है। अजर जर है ता निजर जरे। जिहड़ा मन साडा, साडी दृष्टि दे जिहड़े दो नेत्र ने, दो नेत्रां च जोत है। परमेश्वर एक जोत है, लेकिन जदों ही साडा मन शरीर जन्म होया बचपन दे विच अपना मन आके पाउण नाल मिलिया, दो नेत्रां च बैठ गया, उदों इनू ज्ञान है। आप छोटे जे बच्चे नू देखांगे, छोटा जिहा बच्चा बार बार इस पॉइंट ते देखदा जिथों श्वास आउंदा, उसनू बार बार उत्थे सम करके इदां देखदा रहिंदा है, क्योंकि उसनू परमेश्वर नाल प्रेम है, नाम नाल जुड़िया है। पर तन है, तन फिर उसनू परमेश्वर नालों तोड़दा है। तन नू भुख लगदी है, भुख लगदी है, फिर रोंदा है, फिर माता दुध देंदी है, दुध पींदा है, फिर थोड़ा थोड़ा प्यार दुध नाल पैना शुरू हो जाता है। फिर हौली हौली बयान होता है, माता की पहचान हो जाती, उन्हां नाल प्रेम पैंदा है, पिता नाल प्रेम पैंदा है। इदा परमेश्वर तो असीं विसर, इदा साडा ध्यान विसर जाता प्रभु दे नालों। सो इस करके सानू समझाया है कि फिर आपां ध्यान जोड़ना, क्योंकि उदों बच्चा है, उसनू आपां ज़्यादा समझा नहीं सकते। इन्ने नू जद समझ आउंदी है, इन्ने नू उहदा ध्यान विसर जाता है। हुण आपां फिर वो ध्यान जोड़ना है। की करना है, अपनी दृष्टि जिहड़ी दो नेत्र ने, इस पॉइंट ते आपां इन्हां नू सम करना है, अपनी दृष्टि नू सम करना है। सम करके सानू आपे दा ज्ञान होंदा है। की ज्ञान होंदा कि असीं एक दृष्टि दे विच हां कि दो दृष्टि दे विच। क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे ने जिहड़े एक दृष्ट होंदे ने, जिन्हां दी करनी भी देवतियां वर्गी होंदी है, रहनी भी देवतियां वाली होंदी है। पर देवता जिहड़ा है, देवता भी हंकार दे विच ही हुंदा, हौमे विच ही हुंदा, भरम दे विच ही हुंदा है। इस करके वो भी मान तान दे विच ही फसिया रहिंदा है। वो भी एक दिखावे वास्ते ही करता है कि मैनूं लोग चंगा कहणगे। सो इस करके लेकिन सानूं फिर पता लग जाता भी असीं कित्थे विचरदे हाँ। जदों इस पॉइंट ते ध्यान लाउंदे हाँ, आपां देखना हुंदा कि नक नज़र आउंदा जां नहीं आउंदा। जे नक नहीं दिसदा ते उत्थे साडी जिहड़ी अवस्था है, देवलोक दी अवस्था है, मन देवता है। जेकर नक दिसदा है, फिर साडा मन दो दृष्टि च है, त्रै गुणा दे विच है। उत्थे फिर सानू ये देखना पैंदा है कि किस पासे विचरदा है ज़्यादा। जे ध्यान सादा सज्जे होएगा, सानू अपना नक सज्जे पासे दिसदा, जां आपां कह लईए जे सानू नक सज्जे पासे दिसदा, इहदा मतलब साडा ध्यान सारा सज्जे पासे है। जे सिर्फ इक्को पासों दिसदा, साडा ध्यान ही सारा सज्जे पासे है। जे सानू नक खब्बे पासों दिसदा, फिर असीं समझ सकदे साडा ध्यान सारा खब्बे पासे है। जे सानू नक दोनों पासों दिसदा,
फिर असीं समझ सकते कि साडा ध्यान विचाले है, ना ज़्यादा सज्जे है ना ज़्यादा खब्बे है। ये विचाले जदों हुंदा इत्थे सतोगुण कह दिता है, इस पासे ध्यान ज़्यादा होएगा तमोगुण है, इस पासे ध्यान ज़्यादा होएगा रजोगुण है। नक नज़र नहीं आएगा, इत्थे देवता है मन। इन्हां आपे नूं पहचान होंदी, क्योंकि इत्थे तक आप जाया जाता है, जीव चले जाता है। इत्थे तक आके जत सत बहुत कुछ इत्थे तक आ जाता है। इस तो अगे जिहड़ा है अमृत है, वो उसदे वास्ते गुर लैना पैंदा है। सुर नार मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाए। एक जुगत है, गुर कोई की है, एक जुगत है जो परमेश्वर वल्लों बख्शी होंदी है, उसनूं आपां प्राप्त करना हुंदा है। देण वाला वो है। वो की है कि फिर आपां इस तो अगे प्रवेश करना है। प्रवेश करके कित्थे तक जाना है, जिथे साडे सारिਆਂ दे मस्तक ते मालिक वसदा है। एक वारी आपां आवाज़ नूं सुन के ध्यान लाउणा है, उस तो बाद फिर सुन के उन्हें मन लेना हुंदा, विश्वास करना। उस तो बाद तुसीं आपां खुद कर सकते हाँ। मुड़ के सानू किसी कोल जाण दी लोड़ नहीं। पर जिन्हां ने सुन के मन लिया, जिन्हां ने मन्निया नहीं, उन्हां नूं बार बार आउणा पैंदा है। जिन्हां मन लिया, क्योंकि गल मन्नण ते है। मन्ना जिन्हूं महाराज समझाउंदे ने, मन्नै तरै तारे गुरसिख, मन्नै नानक पवै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाना ना कोई। किसी मन ने नाम नूं जाणिया है, उहदी सुन के मन लवांगे उस सिੱਖਿਆ नूं, ते फिर सानू दोबारा किसी कोल मंगना नहीं पैंदा। सो इस करके वो की है, आपां किवें करना वो समझ लो, क्योंकि सारा ध्यान मार्ग है। इस एक बारी समझ ला, फिर करना ही है, नदरां नाल ही करना हुंदा है। सब तो पहला आपां अपनी दृष्टि इस पॉइंट ते टिकावांगे। इत्थे टिका के देखांगे सानू कि नक नज़र आउंदा कि नहीं आउंदा। जे नज़र आउंदा तां किस पासे तो आउंदा, सज्जे खब्बे जां दोनों पासे तो, इन्हां देखांगे। उस तो बाद फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लैके आओ। इत्थों आपां सामने देखांगे। इत्थों फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान मस्तक दे सामने लै जाओ। आपां की करना है, पलकां उत्ते चुकणियां। फिर जदों कहांगा सामने, फिर बाप सामने देखांगे। फिर जदों कहांगा नक ते, फिर नक ते सम करके देखांगे। ये आपां ध्यान किस वास्ते लाउंदे हां? जेकर कोई नवां जीव है, जेड़े रोज़ करते ने, वो अपना हर वक्त इनू कर सकते ने। पर नवें जीव नूं एक बारी समझना पैंदा है, गुर ते विश्वास करना पैंदा है, तां ही चलेगा, नहीं वो ते आ नहीं सकता। सो आओ आपां सारे ही करिए, क्योंकि संगत रूप में चलना हुंदा है। कोई नवां आया भी अपने नाल चल के उसका भी उदार हो जाता है। और नेत्र सम करिए, अपने आप को देखिए। सामने लेके आइए, ध्यान सामने देखिए। मस्तक दे सामने लै जो ध्यान, पलकां उत्ते चुक दो।
फिर सामने लेके आइए, ध्यान सामने देखिए। फिर नक ते सम करके देखिए अपने आप नूं। जेकर कोई नवा जीव किसी नक दिखता सी, उसने ही देखना है कि हुण नक दिसनों हट गया। इस पासे एक हल्की परछाई सन नज़र आ सकती है खब्बे पासे, जिधर फिर सुखमना प्रगट हो जानी है, निर्मल हो जानी है। इसनों आपां सुन सुन के वेखना हुंदा है, मनना हुंदा है। सुन सुन वेखै मानै, सुन सुन मानै वेखै जोत। कहते सुन सुन के मन के फिर इस जोत नूं देखदा है, प्रगट हो जाती है। सुन सुन वेखै मानै जोत। नीचे लै जाइए ध्यान हुण, बिल्कुल रिलैक्स। नीचे जो कपड़ा वगैरह विछा उस तो थोड़ा ऊपर आपां देखने की कोशिश करांगे, ध्यान नूं रोकांगे। थोड़ा ऊपर सानूं उत्थे ही प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा। सानूं इदां अनुभव होना शुरू हो जाता जिवें पानी दीयां लहरां चलदियां ने, एक हलचल तरंगां अनुभव होने शुरू हो जांदियां हन, जिसनूं आपां ध्याई जाना हुंदा है, देखी जाना हुंदा है। फिर नक ते सम करिए, फिर दृष्टि सम करके देखिए अपने आप नूं। फिर नीचे ले जाइए ध्यान, बिल्कुल लक्ष्य देखना है।
फिर अपने आप को सम करके देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। फिर सम करके अपने आप को देखिए एक बारी, दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान।
फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ, दृष्टि सम करके अपने आप ਨੂੰ फिर देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके दे नाल जदों प्रेम पाउंदे हाँ परमेश्वर दे नाल, दर ते इत्थों परमेश्वर दर शुरू हो जाता है ते आप मालिक साडे मन नूं नाम रूपी अमृत जल दे नाल सिंजदा है। मन निर्मल हो जाता है, साडा भरम खत्म होंदा है ते मन प्रकाश रूप हो जाता है ते जीवन मुक्त हो जाता है। इस करके सानू नेड़े देखण दा जो ज्ञान है, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटा ज्ञान बिन सा अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। सौ इन्निक विचार करते हाँ बहुत सारिया भुल्लां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।